Hello everyone, my name is Akash. Welcome back to a new video. In the last video, we started Unit 1 of Political Science, the problems of India and the solutions. In that video, we saw the unemployment, discrimination, corruption and communalism. In this video, we'll see terrorism and the corporate strategy. Before moving into today's video, we'll see that today is 21st August. Today is the birthday of a great Jamaican sprinter named Usain Bolt, who have achieved a number of medals, and also the birthday of Robert Lewandowski. He is a great footballer. Today, on 1911, Mona Lisa of Leonardo da Vinci was stolen by Vincenzo Perugia, and on today, 2013, it was reported that hundreds of people were killed by the chemical attacks in the Ghouta in the region of Syria. So now we'll start with the status of women. The achievements of women during pre-independent India are notable. Jhansi Rani Lakshmibai, Kittur Rani Chennamma, Annie Besant, Kasturba Gandhi, Savitribai Phule are some of the memorable women freedom fighters. Now in this, Jhansi ki Rani Lakshmibai, Kittur Rani Chennamma fought against the doctrine of lapse policy. Now women are present in all walks of life like medical, teaching, engineering, pilot, astronaut, police, politics, military and other areas. Still, the status of women need to a lot of improvement. Still, there is improvement required. The status of women has remained low due to social customs, poverty and illiteracy. The main reason for the lack of the empowerment of women are the social customs, poverty and illiteracy. यही जो तीन कारण हैं, इनके वजह से ही वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ी स्लो हो रही है. दिस हैज़ अफेक्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. इन्हीं के कारण कंट्री की प्रोग्रेस भी थोड़ी कम हो गई है. द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है एस्टैब्लिश हो चुका है गवर्नमेंट थ्रू, जिसकी वजह से वुमेन्स एजुकेशन एंड स्टेटस को बढ़ावा दिया है. थ्रू वेरियस मेजर्स टेकन द गवर्नमेंट सीक्स टू इम्प्रूव स्टेटस, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द वुमेन. अब ये जो डिपार्टमेंट है, इसका मेन रीज़न है कि वो इम्प्रूव करे वुमेन के स्टेटस को, उनके हेल्थ को और उनके एजुकेशन को. ये सब फैसिलिटीज़ वो डिपार्टमेंट देता है. Many programs have been implemented to curb child marriage system, dowry prohibition act, compulsory education are implemented as means of empowering women. अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स लिए गए हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को सिस्टम को उन्होंने बंद कर दिया है, डाउरी प्रोहिबिट कर दिया है, कंपलसरी एजुकेशन फॉर वुमेन डाल दिया है, इम्प्रूव करने के लिए, एम्पावर करने के लिए वुमेन को. The government of Karnataka has implemented Stree Shakti program through which self-help groups of women are formed and fostered as means of social progress. कर्नाटका एसएससी बोर्ड के लिए आप ये एक पॉइंट आप याद कर लो, द गवर्नमेंट से प्रोग्रेस तक बाय हार्ट मत करो, सिर्फ याद कर लो, समझ लो क्या है ये. आप लिख दो, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एम्पावर वुमेन. अगर करके पूछ लिया आपको तो आप ये पॉइंट उस क्वेश्चन के लिए आप ये आंसर लिख सकते हो. वेरियस कोऑपरेटिव फॉर्मेशंस लाइक स्त्री शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसोसिएशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड. वुमेन कमीशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट नेशनल एंड स्टेट लेवल टू एड्रेस द वेरियस इश्यूज ऑफ वुमेन. Now attempts are made to provide reservations at state, national legislature bodies. अब यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व किए जाते हैं वुमेन्स के लिए एट स्टेट एंड नेशनल लेजिस्लेचर बॉडीज़. वुमेन रिजर्वेशन हैज़ ऑल बीन प्रोवाइडेड एट लोकल बॉडीज़. वुमेन रिजर्वेशन इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स. वुमेन रिजर्वेशन हर जगह पर हो चुका है. इन इंडिया
Indira Gandhi was the prime minister for a long time. As Pratibha Patil was president of India. Many women have performed various roles as ambassadors, governors, ministers, chief ministers, and many other have influential positions and have performed well. The success of these women has been inspirational for all women. यहाँ पे उन यहाँ पे प्रतिभा पाटिल जो कि है फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर, सुचिता कृपलानी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये सब रोल मॉडल है। अब बढ़ते हैं टेररिज्म की तरफ। नाउ व्हाट इज़ टेररिज्म? टेररिज्म कैन बी कॉल्ड एज एक्सट्रीमिज्म। दिस इज़ अ मेथड पुटिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ये एक मेथड है जिससे आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हो। टेररिज्म बेस्ड ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, रिलीजियस फेथ्स एंड आइडियोलॉजिकल बिलीव्स क्रिएट्स अ लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स। इससे कई लोगों की जानें जा जाती है। Moreover, terrorism creates psychological pain and influences the cultural aspects negatively. ये cultural aspects को negatively affect करता है। Terrorism is nothing but fulfilling its narrow end by creating panic and violence. कोई एक चीज़ को अचीव करने के लिए वो पैनिक और वायलेंस करते हैं, जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है और वो उस चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं। These are organized crime perpetrated by organized groups of people. अब ये जो रहता है एक ऑर्गेनाइज रहता है, एक या दो बंदे नहीं करते, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। सच एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्ट्स। अब ये ना ही नेशनल एक्ट है और ना ही सोशल एक्ट है। Bringing down of World Trade Center at USA, bomb attacks at Bali in Indonesia, bombing various cities in France, Britain and other countries are the reasons for worries at international level. अब इसका खतरा या फिर एक या दो कंट्री को नहीं है, इंटरनेशनल खतरा है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो यूएसए पे अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक्स हुए थे बाली में जो इंडोनेशिया में है। बॉम्बिंग जो है फिर फ्रांस में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था और बहुत सारे कंट्रीज में हुआ था, इंडिया में भी हुआ था। ये सब जो है एक कंट्री के लिए नहीं है, पूरी की पूरी इंटरनेशनल लेवल वरी है। अब ये एक पॉइंट आप याद रख लो। The terrorism is based on extreme religious sentiments, separatism, racialism और leftist ideas. ये जो क्वेश्चन है आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने रेडिंग से इसे अंडरलाइन किया है। प्लीज़ इसे याद कर लो। टेररिज्म के लिए ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन अ कंट्री फंड्स एंड सपोर्ट्स टेररिज्म इन अदर कंट्री। अब ये जो ये लाइन क्या कह रहा है, एक कंट्री जो है सपोर्ट करता है टेररिज्म दूसरे कंट्री में। Terrorism targets civilians of the country, military bases, and also targets specific communities with specific languages, religion, race, and skin color, and create maximum terror among them. अब क्या टेररिज्म क्या करता है, सिविलियंस को टारगेट करता है, मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता है और टारगेट करता है कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हो या फिर एक स्पेसिफिक जगह में रहते हो, एक स्पेसिफिक रेस के या फिर एक स्पेसिफिक स्किन कलर के, और वो मैक्सिमम टेरर पैदा करता है उन लोग के मन में। इट एम्स एट क्रिएटिंग मोर फियर बाय किलिंग पीपल। अब ये सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है लोगों को मार के। दे यूज़ एक्सप्लोसिव्स, डेडली गैसेस टू अटेन देयर गोल्स। अब वो जो मारते हैं वो एक्सप्लोसिव यूज़ करके मारते हैं, गैसेस छोड़ के मारते हैं। द किलिंग्स डन बाय टेररिस्ट आर प्री प्लान्ड। अब वो ऐसा नहीं होता है कि वो सीधा जाकर अटैक कर देते हो, ये सब एक प्री प्लान्ड होता है, प्लानिंग हो गई होती है उनकी। दे वर्क विद देयर ओन नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस। उनका भी एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। दे एम्प्लॉय मॉडर्न डे गैजेट्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब वो भी जो है पुराने ज़माने की कोई चीज़ नहीं, वो सिर्फ मॉडर्न गैजेट्स और टेक्नोलॉजी ही यूज़ करते हैं सब करने के लिए। They target busy areas like airports, railway stations, markets and other areas to attack. अब वो ऐसे एरियाज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, मार्केट्स और भी कई सारी जगह जैसे मॉल्स वगैरह। They also use tactics like suicide bombing, kidnapping innocent people to attain their target aims. अब सुसाइड
बॉम्बिंग भी जो होती है वो यूज़ करते हैं किसी एक इंसान को पे, वो लोग बॉम्ब बांध के भेज देते हैं मार्केट पर और वो खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है, इसे कहते हैं सुसाइड बॉम्बिंग। अब देखते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन द टारगेट ऑफ टेररिज्म फॉर मैनी ईयर्स। कई साल से इंडिया टारगेट है टेररिज्म का। टेररिज्म is and was there in states like नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर, पंजाब एंड अदर प्लेसेस। अब ये सारे रीजन में बहुत ज़्यादा टेररिज्म अटैक्स हो चुके हैं। देयर वॉज अटैक ऑन ताज होटल इन मुंबई ऑन November 26, 2008। सिमिलरली द पार्लियामेंट हाउस हैड ऑल्सो बीन टारगेट ऑफ टेररिज्म। हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी एक बार टारगेट बन चुका था टेररिज्म का। टेररिस्ट हैव टारगेटेड हाउसेस terrorism had targeted places like Hyderabad, Chennai, Bangalore, Bodh Gaya and other places to create panic. Our neighboring countries like Pakistan and China are accused supporting and aiding terrorism in our country. टेररिज्म जो है टारगेट करते हैं मेनली जो प्लेसेस है वो हैदराबाद है, चेन्नई है, बैंगलोर है, बोध गया है। ये सारे जो प्लेसेस आपने देखा होगा सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। और ये भी कह रहा है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान और चाइना, उन पे एक्यूजेशन लगाया गया है कि वो सपोर्ट करते हैं और एड करते हैं, मतलब उन्हें सप्लाईज देते हैं टेररिज्म को हमारे कंट्री में तबाही मचाने के लिए। इंडिया हैज़ ऑलवेज क्रिटिसाइज टेररिज्म इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। आर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ टेकन अटमोस्ट केयर टू स्टॉप टेररिज्म। इंडिया को टेररिज्म से चिढ़ है, वो हमेशा से ट्राई कर रहे हैं कि वो स्टॉप करे टेररिज्म को। They have always strived to protect the property and life of ordinary people. They have even created special elite forces to tackle these terrorists. अब ये जो टेररिस्ट है इनको टैकल करने के लिए स्पेशल इलाइट फोर्सेस है, जिनमें एक स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो हमें डिफेंड करते हैं, हमारे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं हमारी जान बचाते हैं। इंडिया हैज़ बीन पीस लविंग कंट्री एंड हैज़ अंडरटेकन मैनी इनिशिएटिव्स टू स्टॉप टेररिज्म। इंडिया जो है बहुत सालों से स्ट्राइव कर रहा है ताकि वो टेररिज्म को रोक दे। A look into history shows that a very little has been achieved by the violent activities like terrorism. At the same time, history has been made by employing truth, non-violence and love. अब ये जो फ़ायदा है कह रहा है जो टेररिज्म करके ज़्यादा किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, और ज़्यादातर अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो ट्रुथ, नॉन वायलेंस और लव से आपने बहुत कुछ पाया है। द किलिंग ऑफ पीपल लाइक गांधी जी, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी डिड नॉट erase their efforts to achieve progress through peace. अब इन तीनों के मृत्यु के बाद भी उनने जो अचीव किया है पीस से, उसे कोई नहीं बता सकता। Whereas the actions of Buddha, Mahavira, Jesus, Muhammad Paigambar, Basava, Gandhi, Nehru, Ambedkar, Martin Luther King, Nelson Mandela and others have given a new light, new paths and new life people all over the world. और यहाँ पे एक है पीस एंड लव आर ग्रेटर देन द वायलेंस एंड हेट। ये एक पॉइंट भी आप याद रख लो, अगर आप इसे लास्ट में एक पॉइंट लिख दोगे तो गारंटी वो खुश हो जाएंगे कि आपने हाँ आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। तो ये एक पॉइंट आप याद रख दो, टेररिज्म के एंड में आप लिख दो। अगर व्हाट आर दी इफेक्ट्स, अगर ऐसा पूछा जाता है नेगेटिव इफेक्ट्स, तो ये आप एक एंड में स्टार पॉइंट डाल के ऐसे लिख दो। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी सिंस बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी के साथ स्टार्ट से ही कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है एक बिगेस्ट चैलेंज आ चुका है इंडियन सोसाइटी के सामने। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, अब हम वो पढ़ते हैं। A group of administrative measures undertaken by a company to achieve a pre-mediated target is called the corporate strategy. Corporate strategy यहाँ से यहाँ तक है, अगर एक मार्क के लिए पूछा तो आप इतने में लिख सकते हो। अब ये जो बता रहा है एक ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, कुछ ऐसे लॉ वो लोग बना देंगे एक कंपनी जिससे उन्होंने एक प्री-मीडिएटेड मतलब एक सोचा समझा मतलब एक प्लान्ड टारगेट जो है वो उसे अचीव करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ मेजर्स लगा देंगे, ये होता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अब द प्रेजेंट डे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर यूजिंग ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अभी पूछते हैं व्हाट आर द प्रेजेंट डे, हाउ
is the present day corporate strategy. तो आप लिख दो, the present day corporate strategies are used in globalized environment and the modern technologies. The main aim of these strategies are maximizing the profits of the company. This affects the people, the society and the country negatively. अब बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है नेगेटिवली अफेक्ट करता है कंट्री को, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके पास पॉजिटिव भी कुछ है. ऑन द पॉजिटिव साइड, द कॉर्पोरेट कंपनीज कैन बी एम्प्लॉयड टू एलिवेट और to stop the social problems like poverty, malnutrition, health, skill training, and many other aspects of society through corporate social responsibility (CSR). Now, the governments need to mandate such initiatives through appropriate legal measures. Only such initiatives the Indian society can channelize the corporate strategies in favor of the society. So now let us see some question answers on this part. Question number 1. What are the effects of terrorism? I have here 3 points which can be written in the case if the question is for 2 marks or 1 marks. Following are the points. Point number 1. Terrorism creates psychological pain. Point number 2. Terrorism fulfills its narrow end by creating panic and violence. Point number 3. It aims at creating more fear by killing people. Now let us see question number 2. What is terrorism based on? This is a 1 marker question. For this you have to write the terrorism is based on extreme religious sentiments, separatism, racialism and leftist ideals. And third and the last question is positive effects of corporate strategy. For this it can be even for 2 marks or 3 marks. So you should write it in this way. Corporate strategy can be employed to alleviate social problems like poverty, health, malnutrition, skill training and other aspects of society through CSR, corporate social responsibility. So I am done with this chapter now. In next video I'll try to start a new chapter. Please do press the subscribe button and turn it grey. Just beside that there will be a bell icon. When you press it you get 3 options. Press on the all option so that you get notified of my videos whenever I upload it.